So I hope everyone has done the questions of exercise 2.1, right? Or anybody is still missing? Everybody done? Yes, sir. Any doubt in the questions? Yes, sir. No, no doubt. Okay, great. So you are a very good student and you do it very well. Fine. So what's the next thing that now we are going to look at the applications of linear pair in one equations. So last time we just have gone through to how to solve the linear pair in one equation, right? So we easily see that any equation like 2x minus 3 is equals to 5 is given, then we can simply get the value of 2x, that will be 8, and x we got it as 4. So that's how this was the previous exercise. That's what we were doing in the previous exercise. Okay, nothing else. So now what will be happening, we will be having some word problems like this, right? This is an example. So suppose we read it, sum of two numbers is 12 and one of the number is 4 more than the other, then what are the numbers? Means that we are having two numbers, right? So in two numbers, जो दोनों का sum है that is 12. So we have to find out what are those numbers, right? So कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस? ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला काम है कि that we let the first number is x. ठीक है? So let the first number is x. First like this. First number as x. Okay. दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा है कि the sum of the two numbers is 12 and one of the number is 4 more than the other number. If the first number is x, then what can be other number? Because that is the 4 more than this, right? So what can be the other number? 4x. X plus 4, not 4x. 4 more, right? So x plus 4. Good. Because the first number is x and that is 4. Suppose you are having one number, एक नंबर आपके पास 5, right? अगर आपसे कोई कहता है कि that you are having what is 2 more? 2 more is what? 5 plus 2. You are having 7, right? 5 के बाद 2 और ज़्यादा करेंगे, that will be coming as 7. Clear? Any doubt in this? No, sir. Okay, good. So now we got assuming हमने first number assume किया कि that is x and we got the second number as x plus 4. Next thing कह रहा है जो first condition है that is the sum of the two numbers is 12. So जो ये हमारा पहला number था, this was the first number and this is our second number. So we will add these two numbers and we'll equate to 12, right? So let's do that one. Okay, it's not changing the color again. It is having some problem in changing colors. Oh, now it's changing. So the first number was x, right? And the another number was x plus 4. We just add, let me put bracket here. So this is our first number and this is second number. And how much summation was there? That was 12. So we decay to 12. अब जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज करी थी वैसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं. So that will be like this, x plus x plus 4, that will be equals to 12. So x plus x is how much? 2x plus 4, that is 12, correct? So let 2x remain in the left hand side and that becomes as 12 minus 4, that is 8. So 2x is 8, so x will be coming how much? 8 by 2, that is 4. Any doubt in this one? Any Yes, sir. in No. creating this one or in the solving this equation? Any doubt to any of them? No, sir. No, nobody. Okay, good. So similarly, we just take one more example that is little complicated, this one, because this was very simple. We just go a bit higher than this. Okay. So the next, this is a example from NCERT. I think the previous one was also from NCERT, but this is also example of NCERT. So the perimeter of a rectangle is 13 centimeter and its width is
2 3 by 4 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स लेंथ. ठीक है, तो हमें रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है किसी को? एनीबॉडी? 2 into L plus B. 2 into L plus B. That's perfect. So we just do like this. The formula we are having, perimeter parameter is 2L plus B. Okay, and now we have to calculate its length. Clear? So let the length is x. Okay, so what will the width of this one? It is saying that its width is 2 3 by 4 centimeter, right? यानी कि this 2 3 by 4. You know how to solve this one? How much it will come? Anyone? Anyone can solve this one? That we calculate like this: 4 2s are 8, 8 plus 3, that is 11. That is coming as how much? 11 by 4. That's how it is coming, right? Correct? Is this clear or not Clear. clear? Okay, that's great. So that's how we are getting the width of the number. So width we got it, right? So now length is x. Now we just put in the our parameter. Okay, so our parameter is given as 13 centimeter. So let's equate in, put in this one. So parameter 13, that is equals to 2 times of length. Length is how much? X, and width, that is b, that is 11 by 4. So how to solve this one? Let's put it 13 here, 2 as it is here, and let's take LCM as 4 here, right? So this will be 4x plus 11. Is this clear? How I did it? 4x? No? Any? Clear. It's clear. Okay, good. So now what we have to do? This cancel these two. This is cancelled out, and now we are having 13 is equals to 4x plus 11 divided by 2, right? How to solve this? Just send this 2, because this is in the division, ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा इधर, right left hand side में अगर लेके आएंगे, that will be in the multiplication. So that can be like this: 13 multiplied by 2, and this will be as it is 4x plus 11. Perfect. 13 twos are 26, that is 4x plus 11. So मैं ये थोड़ा 4x plus 11 अब लेफ्ट हाइट साइड में रख लेता हूँ. So 4x plus 11 will be 26. Okay, so this 4x will be equals to 26 minus 11. We are doing the same thing as we were doing in the previous exercise, or just solving, simple solving. So that will be how much? 1 5, right? So x will be coming as 15 by 4. Correct? We got the answer. Anyone has any doubt in this one? Any step from top to bottom, or creating this point up to the solving? Any doubt to anyone? No?
Good. So let's move. If anybody is noting down this one, or so I should move to the next one. I hope anybody is not writing, right, or writing. नोट कर रहे हो क्या? नहीं, सारे जाग रहे हो ना? सारे लोग सो तो नहीं है कोई? No, sir. ओके, जाग रहे हो, गुड गुड। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक एग्जाम्पल ही है एंड दैट्स आल्सो फ्रॉम द एनसीईआरटी। थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले मैंने बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिए थे और अब धीरे धीरे मैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ। इनफैक्ट एनसीईआरटी में ही ऐसे गिवन है कि दैट दे हैव टेकन वेरी गुड नो इजी एग्जांपल्स इन द स्टार्टिंग एंड दे आर स्लोली इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल। तो ऐसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ये कह रहे हैं कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हमें नो जज करना होता है कि किस चीज को वेरिएबल एक्स माने। दो वेरिएबल होगा इसमें, दो चीजें हम एज्यूम कर सकते हैं। एक तो साहिल की मदर है, राइट, और दूसरे खुद साहिल है, राइट, साहिल्स मदर एंड नेक्स्ट इज साहिल। सो अब हम किसकी एज जो है वो एज्यूम करनी है, बता सकते हैं? किसकी एज्यूम करनी चाहिए हमें? Sir, Sahil. साहिल की। दस बेटर, बिकॉज हमें साहिल के अगर हम एक्स एज्यूम करते हैं तो वी विल सिंपली गेट द साहिल्स मदर से कैसे मिल जाएगी? द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो प्रेजेंट एज, ये जो भी बात कर रहे हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एज। ओके, सो दिस इज एक्स, साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ एक्स, so that will be 3x. Yes. Perfect. So now we got the age of Sahil, that is x, and we got the age of Sahil's mother, that is 3x. Now the next point they are saying that after 5 years of their age, after 5 years, so let's make another thing, that is after 5 years, after 5 years, what will be the age of Sahil's mother now? Sahil's mother's age 3x plus 66. 3x plus, somebody said something, I'm very curious about that. 3x plus 66. बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगी? बिकॉज करंट एज जो थी वो 3x थी। अभी 5 साल बाद, मान लो अभी आप 3 साल के हो, 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? अभी चलो, अभी करंट एज कितनी है? लेट मी टेल यू, लेट मी नो यू व्हाट्स योर करंट एज। अभी आपके कितने साल के हो बताओ? क्या नाम है? निमया, निमया, राइट, निमाया। सो व्हाट्स योर एज राइट नाउ? कितने साल के हो आप? आई कैंट हियर यू, आई थिंक योर फोन इज म्यूट और समथिंग। निमाया, कितने साल के हो आप? आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। म्यूट हो क्या आप? नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर आप 15 साल के हो अभी, बाई चांस, ठीक है, आई डोंट नो कि अभी 15 साल के हो कि नहीं, बट अगर आप 15 साल के हो तो 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? +5 हो जाएगी, यानी कि नाउ आफ्टर 5 years यू विल बी ऑफ 20 years old, राइट? सो सेम थिंग, अभी जो साहिल की मदर की एज थी, करंट थी, यानी प्रेजेंट एज ये है 3x, आफ्टर 5 years इट विल बी 3x 3x plus प्लस 5. 5। ठीक है, और साहिल की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 5 years? जितनी एज थी, कितनी एज X थी plus उसकी? 5. x+5। दैट्स गुड। यानी कि साहिल की मदर की एज हो गई 3x+5, साहिल की एज हो गई x+5। दैट इज वी आर फोकसिंग ऑन द आफ्टर 5 years, करेक्ट? नाउ वी कम टू द पॉइंट that they are saying that their ages will add to 66 years. Let me change the color now. So now there will add to 60 years, यानी कि दोनों की जो एज का सम होगा that will be 66 years, यानी कि साहिल की एज, साहिल्स एज, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चंस वेरी स्लोली ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी भी कर सकता था, लेकिन आई एम टेकिंग टाइम बिकॉज अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं चीज़ें, ठीक है? सो साहिल्स मदर्स एज, दोनों का जो समेशन होगा दैट विल एड टू हाउ मच? 66। दैट्स व्हाट दे आर गिवन, दैट
आफ्टर 5 years देयर एजेस, यानी कि उनकी एज will add to how much? 66 years. So what is after 5 years how much? Sahil's mother's age is 3x plus 5, यानी कि this one will be 3x plus 5, and Sahil's age is x plus 5, and this plus summation as it is, यानी कि this is the age of Sahil and this is the age of her mother, और दोनों का जो summation होगा that will be 66. Perfect. अब सिंपली सॉल्व करना है इसको, और जरा सॉल्व करके मुझे क्विकली बताओ कि x का आंसर वैल्यू कितनी आएगी. जस्ट सॉल्व इट इन योर नोटबुक. ये आंसर बताएंगी देवांशी. आई एम वेटिंग फॉर देवांशीज आंसर. ओके. Sir, done. कितना आंसर आया? Sir, 14. X is equal to 14. 14. Good. Anyone else calculated? Okay. So Devanshi, you may chat here as well. If you want to type, I want to know your answer from your side. How much you calculate? Okay. So meanwhile, let me solve it. So when we solve it, just first तरीका है हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. So that will be x plus 5, that is 3x plus 5, that is 66. Okay. So now x plus 3x will be added to how much? 4x, and this 5 plus 5, that is 10. So 4x plus 10 will be equals to 66. Let me save the space. Okay, I'm using here. Okay. So let me solve it here. So that will be 4x will be equals to 66 minus 10. So 4x will be 56. 66 minus 10 is 56. इसमें मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा. And x will be how much? 14 from here. सारा का आंसर 14 ही आया या किसी का कम ज़्यादा आ रहा है? 14. Okay, that's good. So now what we have to calculate, find their present ages. तो साहिल की जो एज थी that was x, so that came as 14, यानी कि साहिल की एज जो आ गई that is 14 years. जो साहिल की करंट एज है that is 14 years. उसकी मदर की जो एज है that is 3 times of x, यानी कि मदर्स एज will be how much? 3 times of x. That will be 3 multiplied by 14, that is how much? 42. Perfect. कोई डाउट है किसी को इसमें? Anyone? No. No, sir. Okay, that's great. So let's move to the next question. Little complicated and थोड़ा सा confusing इसमें रहता है. 2 rupee coin and 5 rupee coin. Where is this? Oh, this is here. ठीक है. तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जरा पढ़ के देखना. What is this saying?
सो दे आर सेइंग दैट वी आर हैविंग 2 रुपी कॉइन्स, यानी कि एक कॉइन है जिसमें कि 2 रुपए का है, दूसरा जो कॉइन है दैट इज 5 रुपए, यानी कि कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, किसके पास है? और ये है बंसी, बंसी के पास ये सिक्के हैं। So Bansi has 3 times as many 2 rupees coins, okay, as he has 5 rupee coins. So है क्या कि जितने सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के जितने बंसी के पास हैं, उसका 3 टाइम्स जो है वो 2 के सिक्के हैं, 2 के सिक्के हैं। ठीक है, 3 टाइम्स। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो यही कि एक्स एज्यूम किसको करें। ठीक है, तो किसको एज्यूम करेंगे एक्स हम? 5 के कॉइन्स को या 2 के कॉइन्स को? सर 5 के कॉइन्स को। एग्जैक्टली, वी विल assume that बंसी हैज x नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5, यानी कि x 5 के सिक्के हैं उसके पास। ठीक है, x नंबर्स। अच्छा, अगर x 5 के सिक्के हैं तो 2 के सिक्के कितने हो जाएंगे? सर 3x। 3x। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज इट इज सेइंग एज बंसी हैज 3 टाइम्स एस मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपीज, यानी कि जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उसके 3 टाइम्स हैं 2 रुपए के सिक्के उसके पास। तो 5 के सिक्के तो x हैं उसके पास, तो 2 के सिक्के हो जाएंगे 3x। ठीक है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ ही हैज इन ऑल सम ऑफ ₹77, यानी टोटल रुपए कितने हैं उसके पास? कितने रुपए हैं पूरे उसके पास? 77। दैट वी हैव टू मेक द पॉइंट। ठीक है, अब ये समझने वाली बात है कि जो 77 आया है वो कैसे आया है। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास मान लेते हैं 10 रुपए का नोट है आपके पास, ठीक है, एक नोट है वो 10 रुपए का है, ठीक है, और एक नोट है आपके पास 50 रुपए का। ठीक है, अगर आपके पास 3 10 रुपए के नोट हैं और 2 5 रुपए के नोट हैं, तो पूरे कितने रुपए हैं आपके पास? कोई बताएगा जरा मुझे? सर 130। 130 कैसे आए? 10 इंटू 3 दैट इज 30, यानी कि 30 रुपए हो जाएंगे आपके पास 10 के नोट के, और 50 का जो नोट है आपके पास दैट इज 100। सो 100, सॉरी एक जीरो गायब हो गया, 100 प्लस 30 दैट इज 130। दैट्स हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल डिनोमिनेटर, यानी वैल्यू जो है आपके पास कितने हैं। ठीक, कितने रुपए हैं आपके पास, वैसे ही हम इसके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक्स नंबर जो है वो 5 के हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी आपके पास 5 के सिक्के की वैल्यू हो जाएगी 5x। राइट, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था 10 रुपए के नोट थे, 3 थे, यानी कि 30 हो गए आपके पास। तो वैसे ही 5 के सिक्के जो है एक्स सिक्के हैं, सो जो वैल्यू हो गई उसकी वो हो गई 5x। 2 के सिक्के हैं वो कितने हैं? 3x। सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3, यानी कि 2 इंटू 3x, सो दैट इज हाउ मच? 6x। करेक्ट, सो दिस इज 5x एंड दिस इज 6x। टोटल रुपए हैं आपके पास 77 ईयर। सो वी विल ऐड दीज वैल्यूज, 5x प्लस 6x, और पूरे पैसे हैं आपके पास या रुपए हैं कितने? 77। सो दिस 6x प्लस 5x दैट इज 11x, दैट इज 77। x की वैल्यू आ गई आपके पास 7। आंसर आ गया आपका? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। हमें तो पता करने थे हाउ मेनी क्वाइंस वी आर हैविंग ऑफ ईच डिनोमिनेशन। तो 5 के सिक्के कितने हैं आपके पास? x, ये तो निकल आया आपके पास, लेकिन 2 के तो नहीं निकाले ना आपने भी। राइट, 2 के सिक्के कितने निकल के आएंगे? दैट वाज 3x। सो 3x इज हाउ मच? 3 इंटू 7 दैट इज 21। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा कहूँ इसको, सो यार ये मेरा पेन चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, लेट मी चेंज इट अगेन। या इट इज। सो अब हमारे पास जो सिक्के हैं, ध्यान से देखते हैं इसको। 5 के सिक्के कितने हैं हमारे पास? 7। कॉइन्स ऑफ 5, coins of 5 we are having 7, and 2's coin we are having how many? कितने हैं? 21। ठीक है,
अब अगर आप इसको ही वैसे ही कैलकुलेट करो जैसे हमने अभी नोट्स के बारे में कैलकुलेट किया था, तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो 77 ही आनी चाहिए. दिस इज जस्ट क्रॉस वेरीफाई दैट वट एवर वी हैव डन, दैट वी हैव डन करेक्टली और नॉट. ठीक है, तो 7 5 जा नहीं, या 7 5 जा, बिकॉज 7 सिक्के हैं हमारे पास 5 के, सो दैट एट द वैल्यू 35. एंड 2 के सिक्के हमारे पास कितने हैं 21, सो दैट इज 21 2 जा 42. दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 77. 77 रुपए ही आ रहा है हमारे पास. 2 के सिक्के और 5 के सिक्के हमने ऐड किए एंड वी आर गेटिंग 77 rupees. Perfect. Anybody having doubt on this question? No. Okay. Let's take one more question. Sum of 3 consecutive multiples of 11, that is 363. ठीक है, तो पहले समझने वाली बात है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं मल्टीपल्स के, वो कैसे निकालते हैं. अच्छा, अगर हम बात करें कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ 5, ठीक है, तो 5 के जो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे 5, राइट. उसके बाद इसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कौन होगा 5 के मल्टीपल में ही, दैट विल बी 10, राइट. कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स. नेक्स्ट वन विल बी हाउ मच 15. इसके बाद कौन सा निकल गया, जैसे टेबल पढ़ते हैं ना, टेबल, दैट इज टेबल हियर 20 25, लाइक दैट वी जस्ट डू इट, राइट. तो वैसे ही अगर हम 11 का टेबल अगर देखें, राइट, 11 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं 11 22 33 44 55 66 dash dash dash, right. That's how we do it. इन्होंने कहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363. So 3 consecutive multiples can be here, right. These are also 3 consecutive multiples. Here also we are having 3 consecutive multiples, and if we take about this 33 44 and 55, these are also 3 consecutive multiples, right. It can be anything, कोई भी 3 consecutive हो सकता है. अभी आपने इसके बाद 77 लिखा हो या 88 लिखा हो, वो भी 3 consecutive multiples ही हो जाते हैं, right. लेकिन कंडीशन ये है, इन्होंने कहा है कि दैट द समेशन ऑफ दीज शुड बी 363. दैट इज द कंडीशन. तो ऐसी वैल्यूज निकालनी है कि जिनके जो समेशन निकल के आए दैट शुड बी 363. तो हम क्या करते हैं इस केसेस के लिए हम एक वैल्यू x मान लेते हैं. ठीक है, कौन सी वैल्यू x मान लेते हैं कि कौन सा वाला जो होगा, यानी कि पहला तो इनिशियल तो 11 इज फिक्स, राइट. द फर्स्ट वैल्यू इज फिक्स, दैट विल बी 11. या यूं कह लें कि अगर हम इसका फर्स्ट जो वैल्यू है उसको x मान लें, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू अगर हम x मान लें तो उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो कौन सी होगी x प्लस 11. यहाँ पे x लिख लेता हूं मैं, राइट. सो फर्स्ट वैल्यू अगर हमने मानी दैट इज x, नेक्स्ट वैल्यू विल बी x प्लस 11, एंड उसके बाद वाली कौन सी वैल्यू होगी x प्लस 11, दिस यानी एंड प्लस 11, या यूं कह लें कि x प्लस 22. ये चीज समझ में आई या नहीं, मुझे लग रहा है कि समझ में शायद नहीं आई. Anyone having doubt on this one? Because this is little complicated. Silence means it's clear or it's not clear? Sir, clear. Clear. Okay, that's good. So let me tell once more. Said so the first value is, suppose यहाँ से ले लेते हैं, मान लेते हैं कि x, यहाँ से अगर हम मान लेते हैं this is value, right. Like this is, suppose this is our x, so 66 कैसे आएगा x plus 11, that's how we get 66. और इस x में ही अगर हम x plus 22 कर दें, so that will be giving us 77. So that's how we get the 3 consecutive numbers. So now the condition is इन तीनों का जो sum है that should be 363. So let me change the color and make it to green. So अब इन तीनों का जो sum है that I will be doing as is how much 363. Clear? तो अब इनका sum कर देते हैं. So x plus x that is 2x
plus x, that is 3x. So this will be 3x, and this 11, this one, this 11 plus 11, that is coming as 3x plus 33. Clear? So 363 here. और अब हम 33 को राइट साइड में सेंड कर देते हैं. सो दैट विल बी 363 minus 33. 3x will be 330. So x will be coming as how much? 1110. अगर x की वैल्यू 1110 आई तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? x plus 11, यानी कि 110 plus 11, that we can say as 110 plus 11, that is 121. ठीक है. एंड या तो एक तरीका है आपके पास 110 में आप 22 ऐड कर सकते हो, और या फिर 121 में प्लस 11 फर्दर कर सकते हैं. सो आई एम डूइंग 121 प्लस 11, दैट विल बी कमिंग एज 132. कहीं पे गलत तो नहीं किया ना मैंने? वन, yeah, that's right. So our three numbers are 1110, 121 and 132. These are the three numbers. Their summation is 363. Cross verify के लिए आप इनको add कर सकते हो and you will get the value. So we can just again go to the back to the problem. जो हमारे पास समस्या थी कि हमने कहा था कि 3 consecutive नंबर होना चाहिए, तो हमें नहीं पता था कि कौन से वाले हैं. तो ये हो सकता था इनिशियल के हों, बट बाई चांस ये कहाँ के हैं? एकदम एंड के. जो हमारी 11 की टेबल खत्म होती है, दैट इज 10th वैल्यू 110. उसके बाद दिस इज 11th टर्म, दिस इज 12th टर्म, एंड फ्रॉम द क्वेश्चन जो समेशन आएगा दैट विल बी 363. So that's how we get the answer. Any doubt in this one? No, sir. No. Okay, that's great. So this is one more example, little complicated, but I will not solve it because I want to cover next chapter. Okay, so I quickly just solve this question number 10, and I want everybody to post it on the group. Will you do it? Just you have to, not right now, I will just cover chapter just after the class. Within 30 minutes you have to just do this example and just post it in the group, so that I will just come to know that everybody has done it or not. And if anybody is having doubt, then I will tell you. Okay, I will send the solution if anybody having problem with this. So just solve it by yourself, this example number 10. First thing, that everybody is having the book of NCERT or not having? Just tell me first. Sir, I have the book of ICSE, Okay. not CBSE and NCERT. Okay, so your syllabus is ICSE. You are from studying from ICSE? Yes, sir. No, sir. I study from CBSE, but my books are from ICSE. Oh, okay. That's fine. So okay, I will just post the PDF of this chapter in the group. So you can just download it and solve accordingly. Okay. That will help you, and I will also post the answers. I think you will not be having the answers if anybody is having this PDF, so I will send 2 PDFs. One will be the chapter 2 and the answers. So answer is the compiled of all the exercise. So मतलब कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो देख तो लो कि भाई आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, तो मैं वो दोनों चीज़ें पोस्ट कर देता हूँ. ओके, सो थोड़ा सा हम ये एक चैप्टर है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज 2.3 है, दैट व्हेन to solve the questions when we are having variables on both the sides. Variable on both the sides मतलब कि अभी तक हम जो क्वेश्चन करते हैं वो ऐसे करते हैं, 2x minus 3 is equals to 5, ऐसे क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, तो इसमें सॉल्व कर लेते थे तुरंत. 2x is equals to 8 and x is equals to 4. थोड़ा सा नया टाइप का है जहाँ पे ऐसा लिखा हो 2x minus 3 is equals to x plus 5. ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं? वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी सिंपल है. कि इसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना होता है कि x वाले जो टर्म्स हैं वो एक तरफ रख लेते हैं और जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ रख लेते हैं, यानी कि x वाले टर्म्स एक तरफ एंड कांस्टेंट कांस्टेंट डिफरेंट साइड. तो हम लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल लिख लेते हैं. ठीक है, सो 2x
राइट हैंड साइड से x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, सो दैट विल बी माइनस ऑफ x बिकॉज दिस इज प्लस x, और इक्वेट में ये -3 जो है वो राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो 5 पहले से था यहाँ पे राइट हैंड साइड में, एंड दैट विल बी प्लस ऑफ 3. So 2x minus x is x and 5 plus 3 is 8. So this is about the exercise 2.3. एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं जरा इसके जल्दी से, ठीक है. सो वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 5x plus 7 by 2 is equals to 3 by 2x minus 14. कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस? एज इट इज, x वाले टर्म्स एक तरफ एंड कांस्टेंट वाले टर्म्स जो टर्म्स हैं वो एक तरफ, यानी कि 5x लेफ्ट हैंड साइड में and minus 3 by 2 of x, so that everything goes in the left hand side. और कांस्टेंट में -14 हमारे पास पहले से था, और 7 by 2 राइट हैंड साइड में फिर से भेज देते हैं, सो दैट इज -7 by 2. करेक्ट. सो फर्स्ट थिंग इज एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 2, so that is 2, that 2 comes multiplication of this 5, that is the 10x minus 3x. अच्छा, ये तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि ये 10x कैसे आया है, बिकॉज दिस इज जस्ट टेकिंग एलसीएम एंड सॉल्विंग इट. एनीबॉडी इज हैविंग डाउट ऑन दिस वन? ये एलसीएम तो करने आते हैं ना, या नहीं आते? नहीं आते हो तो मुझे क्विकली बता दो, आई विल सॉर्ट इट आउट. पूछते रहना बच्चों, पूछते रहना, बिकॉज अगर पूछोगे नहीं तो आपका जो डाउट है वो हमेशा डाउट ही बना रहेगा और हमेशा बना रहेगा. अभी आप 8th में हो, कल 10th में जाओगे, फिर 12th में जाओगे, फिर आगे हो सकता है आप कुछ बढ़िया सी प्रिपरेशन करने चले जाओ, जेई नीट या किसी और गवर्नमेंट जॉब में. सो बट योर प्रॉब्लम ऑलवेज रिमेन्स प्रॉब्लम इफ यू डोंट आस्क इट. ओके, सो कीप आस्किंग. आई एम नॉट योर स्कूल टीचर, आई विल नॉट बी स्कोल्डिंग यू. डांटना का नहीं है, मारना नहीं है, नथिंग एल्स. वी आर जस्ट फ्रेंड्स. ओके, सो व्हेनेवर इफ यू हैव एनी सिली डाउट जस्ट आस्क इट. ओके सर सर आज जो चैप्टर दिए थे बनाने के लिए बहुत पहले 2.1, और तो उसमें भी यही ना था, वेरिएबल इन बोथ साइड्स. बोथ साइड ये था, या उसमें हम सिंगल साइड कर रहे थे, बोथ साइड नहीं किया था हमने. हाँ, तो उसमें एक ही साइड एक्स रहता था. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. वेरिएबल और कांस्टेंट को एक जगह करना था. हाँ, उसमें नॉर्मली जो क्वेश्चंस थे वो इस टाइप के थे. 5x minus 3 is equals to 2, तो हमारा x एक ही तरफ रहता था. और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनमें x दोनों तरफ आ रहा है, इधर भी x है, इधर भी x है वैसे सिंपल ही, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एक्चुअली चैप्टर कल अलग कर रखा है एक्सरसाइज में, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू इफ यू डोंट नो, दैट्स इट. अगर पता ना हो तो पता हो जाए, और कोई दिक्कत नहीं है. ओके ओके सर. ओके गुड. सो यहाँ से this 10x minus 3x how much comes as 7x divided by 2. 20 minus 28 minus 7 दोनों माइनस के हैं, so they will be add up, so that will be minus 35 divided by 2. now this 2 राइट हैंड साइड का 2 लेफ्ट हैंड में आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 2, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला 2 राइट साइड में जाएगा तो दैट विल आल्सो गो इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, so that will be coming as how much 2 7x multiplied by 2, that is equals to minus 35 by minus 35 into 2. okay, 7x एज इट इज रखते हैं यहाँ पे, एंड माइनस 35 इंटू 2 को भी एज इट इज रखे रहते हैं, और ये जो इधर वाला 2 है वो इधर राइट साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, दैट विल बी कमिंग एज 2. इफ यू माइन्यूटली ऑब्जर्व, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास कितना, minus 35. now we are having 7x equals to minus 35. so x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, minus 35 divided by 7. 7 से डिवाइड करेंगे, so it will be coming as minus 5. so now we get the value of x as x equals to minus 5. थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसको एक तरीके से और कर सकते थे हम इजीली. कैसे कर सकते, ये तो भाग रहा है. कैसे कर सकते थे इसको, कि पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में भी। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन था, चलो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, एंड अगेन वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ चेंजिंग द कलर्स। Anybody want to join? Looks to me Uttam. Uttam, you are so late. We are about to finish the class. So that's how we can do, मतलब कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे 5x प्लस 7/2 ये लिखा हुआ था, राइट? सो 3/2 x माइनस 14। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर हम दोनों तरफ क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, राइट? लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो ये क्या हो जाएगा, अंदर पहुंचेगा, दैट विल बी कमिंग एज 2 into 5x। और अगर आपने पिछला चैप्टर हो सकता है किसी कुछ लोगों ने मिस कर दिया है वैसे, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था हमने, तो दैट अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन इट विल बी मल्टीप्लाइड इनसाइड, सो दैट विल बी 2 into 7/2, ठीक है? एंड फिर इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो दैट विल बी 2 into 3/2x, ओके, एंड माइनस 14 into 2। अगर ये कॉम्प्लिकेट लग रहा हो तो आप ऐसे कर सकते हो, और अगर ये कॉम्प्लिकेट लग रहा हो तो आप ऐसे कर सकते हो, तो दोनों वाइस वर्सा है, बट द आंसर विल कम सेम। सो 2 into 5x विल बी 10x, और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाता है, दैट इज कमिंग एज 7, और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 3x, 14 into 2 दैट इज 28, ठीक है? फिर वही करना है, x वाले टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट वाले टर्म्स एक तरफ, सो 10x माइनस 3x, राइट साइड में माइनस 28 प्लस 7 राइट हैंड साइड में जाएगा, सो तो माइनस 7, 10x माइनस 3x इज 7x, 28 minus 7 they will add up, so that will be minus 35, so x की वैल्यू हो जाएगी minus 35 divided by 7, and x comes as how much, minus 5, so we get the same answer। करने का तरीका सिर्फ अलग है, जो भी आपको अच्छा लगे, आपको ऐसे अच्छा लगता हो बिना 2 मल्टीप्लाई किए तो भी कर सकते हो, और अगर 2 मल्टीप्लाई करने के अच्छा लग रहा हो सो ऐसे कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन दैट हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर टू डू द क्वेश्चन, लेकिन बेटर रहेगा दोनों तरीके आते हो आपके पास। सो दैट्स इट। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? No, sir. No, okay, that's good. So Yes. no, okay, good. So now you have to solve the exercise 2.2 and 2.3, okay? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेट मी पुट इट हियर। मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है, मैं आपको ये भेज देता हूँ, ठीक है? सो exercise 2.2 are having 16 क्वेश्चन, ओके? 16 क्वेश्चन आपके पास, और एक्सरसाइज 2.2 में है आपके पास 10 क्वेश्चन, ठीक है? तो इनको दोनों को क्वेश्चंस को करो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी ऑन संडे सेम टाइम 2 PM, ओके?